Biparjoy made landfall at the Gujarat coast on Thursday. The storm led to heavy rainfall and intense tidal waves near Mumbai and Gujarat. The IMD has said there will be dangerous wind speeds till the evening and heavy rainfall will continue. The storm is expected to change into a depression this evening over South Rajasthan. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel held a review meeting to discuss measures to deal with the aftermath of the cyclone. As of now, 2 people have died and over 20 people have been reported injured. Around 1 lakh people living in vulnerable areas were evacuated before the landfall as a precaution. Disaster management units, including from the Army, Navy and IAF, are on high alert. We are here at Rupair Bandar, where water levels have started rising precariously, and as it is, we are seeing that it is being seen that all these people who are stuck here are being rescued by the NDRF. The NDRF teams are also here. Continuous rainfalls due to cyclone Biparjoy have led to massive waterlogging, flooding in this entire region, and people are stuck here. पानी कब से भर रहा है? पानी चालू है अभी भरता चालू है। पापला पानी आता है वो दरिया का मीठा पानी 2 मिक्स में होता है। ये आखा जाएगा। तो ये कल से हो रहा है पानी या कल से होता है। कल से हो रहा है। कल से हो रहा है। यहाँ पे कितने लोग हो आप? इधर 100 ऊपर है। 100 के ऊपर हो? 100 के ऊपर है। और पानी बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जाएगा। ये डूब जाएगा, स्कूल बड़ी डूबेगा। So here residents are saying that the water levels are only continuously rising. Let us try and see what the rescue operations are. We can see that the NDRF is taking life buoys with them. If I can request my video journalist to show that the NDRF team is coming on walking from here. They are bringing with them ropes, life buoys. We are witnessing a rescue operation live, the evacuation operation which is being conducted by the NDRF right here. Around 120 people here is what NDRF Jawans tell us. Even as they are putting in ropes and life buoys, we can see that one of the NDRF Jawans is actually rescuing a child who was stuck in these floods. He is being brought to safety. You can imagine the impact of cyclone Biparjoy that it has had, the fury of nature and the kind of destruction that it has had in the last 12 hours or so. यहाँ से सर आप यहाँ से बच्चे को रेस्क्यू करके ला रहे हैं, ऐसे कितने लोग फंसे हैं, क्या अंदर का नजारा हमें बताएंगे? जी मैडम, वहाँ 60-70 आदमी फंसे हुए, छोटे बच्चे हैं, फैमिली के साथ है। जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है। मांडवी, कच्छ के मांडवी, जखोई, नलिया, हर जगह सुबह से धमाकेदार बरसात है। पवन जो है मतलब इतनी तीव्र गति से चल रही है कि जिसकी वजह से बोलना और चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। खास करके ये मांडवी का इलाका है जहाँ पानी जो है वो भी भरना स्टार्ट हो गया। यहाँ से एक रोड जाता है जहाँ पे अंदर 3000 लोग रहते हैं, लेकिन आगे जो है वो वृक्ष गिर गए हैं जिसके कारण अंदर रोड भी बंद हो गया है। ये हाईवे के अंदर पानी ही पानी दिख रहा है। ये हाईवे एक तरह का जो सीधा रोड पे जाता है। धीरे धीरे ये पानी की जो मात्रा है वो काफी बढ़ रही है और उसके बाद जो है हो सकता है कि और मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से कच्छ को, खास करके कच्छ और सौराष्ट्र की आगाही की गई थी कि अनुमान लगाया गया था कि लैंडफॉल होने के बाद काफी तेजी से बरसात और तूफान आएगा, वही साबित हो रहा है। और कच्छ में बहुत सारी जगहों पे जो है वृक्ष गिरते हुए दिख रहे हैं, पानी भराव दिख रहा है और लोगों को निकलना और चलना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं द्वारका से मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूँ कि मेरा कैमरामैन जो है वो भी सही तरह से खड़े नहीं रह पाए। ऐसी स्थिति यहाँ पर आज हो चुकी है। हम गोमती घाट के पास द्वारका जहाँ माना जा रहा है उस श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ से हम आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह का ये सीन है। आज भी अभी भी समुद्र अपने उफान पर दिख रहा है, तेज हवाएं चल रही है। हम यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। हमारे जो विजिबिलिटी है वो बहुत डाउन हो चुकी है। फोरकास्ट ने भी कहा था कि पूरे दिन बारिश रहेगी, हैवी टू हैवी रेन रहेगा और सबसे ज्यादा हवाएं तेज चलेगी। और ये माहौल दिख रहा है। कल रात पूरी रात यहाँ पर बारिश हुई है और सुबह से बारिश चल रही है और जो हवा की गति है वो भी तेज हो रही है। और अभी तक माना जा रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया है सुरक्षित जगह पर। कई मंत्रियों को जवाबदेही दी है, कई केंद्र के भी कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं।
अभी यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और ये मैं जखौ और नलिया के बीच में मैं तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है, हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी कम है, बावजूद यहाँ पर अभी भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी है। यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे उखड़ने की जानकारी मिल रही है और इसी के चलते डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें वहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात जसप्रीत, कोई हताहत नहीं हुई है। जब तक आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, अब तक सरकार के पास ऑफिशियल फिगर्स में देखा जाए तो सबसे बड़ी इस उपलब्धि है कहें इस पूरे साइक्लोन के भीतर सरकार के इवैक्यूएशन प्लान की कि एक भी हताहत नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं किस हद तक तेज हवाएं चल रही है। ये जखौ और नलिया से जोड़ती हुई सड़क है और यहाँ पर इक्का दुक्का कार, वो भी खासतौर पर मीडिया जहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वही कार के अलावा यहाँ पर कोई कार यहाँ पर दिख नहीं पा रही। और यहाँ पर एक धारा 144 वैसे भी लागू है, ऐसे में कोई लोग घरों से बाहर ना निकले, यही हिदायत दी गई थी। और आज चूंकि ये पूंछ है, अभी देखिए ये जो साइक्लोन की पूंछ है, चूंकि साइक्लोन की आय है वो निकल चुकी है, ऐसे में जाते हुए भी ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में 11:30 बजे तक A day after the landfall of Cyclone Biparjoy, we see that rough weather conditions continue. Even now, we are at Dwarka, where wind speeds are continuously high, though not as high as compared to last night, but you can see that I'm finding it difficult to even walk in this wind speed. The rains have reduced a bit, but we can see that the skies continue to remain overcast. For in the last 8 to 10 hours or so, there has been damage to property. Several trees have fallen, over 500 trees have fallen in different areas. Also, we have lost over 20 livestock and 23 persons have been injured. There is no report as of now of any casualty, fortunately. तूफान बिपरजॉय जिसका खतरा अब टल चुका है, मैं अपडेट आपको बता दूं। हालांकि पेड़ यहां पर गिरे हैं, जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। और ये कहा जा सकता है कि इस नगरी को भगवान द्वारकाधीश ने बचा लिया, क्योंकि कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, भगवान द्वारकाधीश की नगरी, यहाँ पर अभी तक कोई नुकसान, जनहानि नहीं हुई थी इससे पहले अगर हम बात करें सुनामी की। लेकिन ये आप देखिए पेड़ जरूर गिरे हैं, यहाँ पर बिजली के खंभे गिर गए हैं। जहां तक नजर जाएगी इस तरीके से इस लेन में अगर हम आगे जाते जाएंगे, ये आप देखिए बड़ा पेड़ गिर गया है। और जिस वक्त ये पेड़ गिरा वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई थी। ऐसे में पूरी तैयारी यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन यहाँ पर कई जगह नुकसान की खबर है। आगे ये पूरी लेन देख लीजिए और अब आपको लोग भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह तेज बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी हुई है, अभी थोड़ा सा मौसम साफ है, लेकिन उसके बाद अभी हवाएं चल रही हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाते जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ये पेड़ गिर चुका है और कई जगह ऐसे पेड़ गिरे हैं जिनको अब साइड पे किया गया है। और अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन आज भी बारिश का अनुमान है। और जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ती है, उसके बाद मुसीबत बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी टीमें अलर्ट मोड में है। और अगर हम देखें तो बिजली वहां पर रात में नहीं थी, इसके अलावा थोड़ी सप्लाई में असर पड़ा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है, ये आप देखिए कि ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर उखड़ गए हैं। उधर क्योंकि दूर से अगर थोड़ा सा विकास आगे आकर के आप जूम करके दिखा पाए, वो आप देखेंगे वो भी पेड़ गिरा हुआ है। तो जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, वहां पर ये पेड़ टूटे हुए हैं। And shifting